Of management, faculty and students. So today we are going to having an interactive sessions on topic of startups. So today the Vineet Khurana is present over here. So Vineet Khurana is a business growth, operation excellence and leadership development expert. He is a certified business and life coach whose purpose is to guide business leaders and entrepreneurs to unlock their potential to achieve their professional and personal goals. A accomplished global leader and strategic, he has invested over 2 decades studying people, process, and technology. As he believes that three intertwined, he is the founder of Unalliance, which is based in Canada. It is an affordable solution to the business of all sizes, especially SMEs and startups. His work is based on philosophy that simplification and excellence are the foundation to overall growth. So I request Mr. Vineet Khurana to be present over here. I request Vineet Khurana to be on stage. So after, I want to say that after the session we have a question answer round. So you guys have, if you guys have question answer, you can ask them after the session. So over to you, sir. Thank you. A little bit of more energy. Good morning, everyone. Good morning, sir. Thank you, Ayush. Thank you for the kind introduction. Thank you, Dr. Sharma, and thank you, Dr. Atipriya. So I'm really fortunate that actually, I'm here today because first of all, I am based in Canada. I don't very often visit India. This is, I think, my first visit in 2 years. I normally used to visit every year. And it's a coincidence that I happened to meet Dr. Sharma through a good friend of mine, and then we started talking about startups. What do you do? He said, yeah, we're just in the process of starting, or we are deep into the process of starting this initiative at our university. So why don't you come and interact with our students? So I said, yeah, that would be my honor, and I love to give whatever knowledge I have and the learning experience that I have gained over the years to the students. So my journey, actually, I'll give you a little bit of a introduction about that, how I ended up in this world and why I do what I do, because that's very important. And then we will get into more of interactive session. And I was telling Dr. Atipriya that I rather want you to ask me questions, whatever things come to your mind, not just questions, but even if you have some comments in whatever language you feel comfortable, because I can speak Punjabi, I can speak Hindi, I can speak obviously English, and I know a couple of other languages which we don't need to talk here, but we can do that. So मेरा जो जर्नी है वो ऑब्वियसली इंडिया से शुरू हुआ. मैंने भी इंजीनियरिंग किया. I did chemical engineering from REC Jalandhar way back, many years back. और उसके बाद मैं चला गया जॉब में, because कैंपस इंटरव्यू होता है जैसे आप लोग का होता है. So I got into Hindustan Lever, which is one of the most sought after jobs in our field. So वहाँ पे मैंने 4-5 साल काम किया. Then हिंदुस्तान लीवर में एक अच्छी बात थी कि उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बड़ा मज़ेदार होता है. वो 2 साल में आपको, जैसे हम कॉलेज से निकलते हैं ना, एक वो अलग तरह का जोश होता है. हम लोग को सब एंग्री यंग मैन बोलते थे. तो एक वो जो 2 साल में वो कहते हैं ना कि अकल टिकाने लगाना जो होता है, वो वाली ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, कि 16 घंटे दिन में कैसे काम करना है, दिन में 18 घंटे कैसे काम करना है, आपको वर्कर्स को कैसे मैनेज करना है, और आपको अपने जॉब को साथ कैसे मैनेज करना है. सो वहाँ से फिर 4-5 साल मैंने काम किया. देन आई वेंट टू यूरोप. एक और कंपनी थी, तो उन्होंने वहाँ मैनचेस्टर, अगर आपने सुना हो इंग्लैंड में नाम. सो हम वहाँ गए. वहाँ पे थोड़े महीने काम किया. तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा इंडोनेशिया में एक फैक्ट्री है, आप वहाँ जाके उसको थोड़ा सिस्टम और प्रोसेस सेट कीजिए. सो हम वहाँ गए. तो उनको मेरा पहला दिन जब था वहाँ पे, तो 2000 लोग वहाँ काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में. और मुझे लगा कि ये क्या कर दिया मैंने, ये कहाँ आ गया मैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह था. और चैलेंज ये था कि उसको हमको एक बढ़िया वर्ल्ड क्लास जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें कन्वर्ट करना है, ताकि वो जो यूनिट है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर हमको कुछ सप्लाई करना है तो वो कर सके. सो आई डिड दैट फॉर 7 years. मुझे ऐसी चीज़ों में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता था, बिकॉज जहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनकी जो जर्नी होती है एक बड़ी डिफरेंट और एक्साइटिंग होती है. सो वहाँ से फिर 6 साल इंडोनेशिया रहने के बाद फिर मैं अफ्रीका, कीनिया चला गया 2 साल के लिए.
वहाँ पे भी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, तो हर जगह, तो वहाँ जब हम कीनिया में थे तो ऑल द पीरियड वाज 2 years, बट आई वाज मेनली डीलिंग विद, जिसको कहते हैं ना कि एक यूनिट जो होता है जब मैच्योर हो जाता है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो यहाँ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आपका आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, एक टाइम आता है जब उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। रीस्ट्रक्चरिंग समझते हैं आप? अभी नहीं समझेंगे बिकॉज अभी थोड़ा फर्स्ट सेकेंड ईयर है। सो रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन के या उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हर एक पहलू को दोबारा से देखते हैं कि ये लोग ठीक हैं या नहीं है, ये सिस्टम ठीक है या नहीं है, ये जो हमारी विजन है वो ठीक है या नहीं है, जहाँ हम जाना चाहते हैं वो ठीक है या नहीं है। ये आपकी लाइफ में भी बड़ी बार होएगा। तो हम अपनी लाइफ की भी रीस्ट्रक्चरिंग बहुत बार करते हैं। अभी आपने यहाँ एडमिशन लेने से पहले करी होगी, चाहे आपने की, चाहे आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया कि अच्छा आपको ये करना चाहिए, हमें ये क्यों करना चाहिए, हमें ये कैसे करना चाहिए। कुछ के साथ ये होता है कि चलो जो मिल रहा है वही कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा, राइट? ऐसा भी होता है, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, बहुत के साथ होता है। तो इसी को रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो कीनिया में वही था, एक फैक्ट्री को रीस्ट्रक्चर करना, वहाँ के लोगों को कुछ को निकालना, कुछ को रखना। तो ये टफ चैलेंजेस जो हैं वो जॉब्स में आते हैं। सो वो करने के बाद 2009 में फिर मैं कनाडा चला गया, क्योंकि हमारे भी बच्चे तब बड़े हो रहे थे, तो वी हैड टू डिसाइड कि ये घूमते रहना है या हमको भी कहीं सेटल होना है जाके। सो कनाडा में फिर मैंने वॉलमार्ट और ये सब बड़े बड़े जो कंपनीज हैं इनके साथ काम किया। सो 3-4 साल पहले मुझे लगा कि इतना जो एक्सपीरियंस गेन किया है, काम का नहीं, एक काम का एक्सपीरियंस है कि अपना एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आप बहुत कुछ सीखते हैं। एक जो लोगों के साथ, आई लिव्ड विद सो मेनी कंट्रीज, आई लिव्ड विद सो मेनी डिफरेंट पीपल, and coming from Punjab, because I belong to Ludhiana, that I always had that appreciation कि अगर आप लोगों को समझते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। So वहाँ जाके फिर ये सब काम करने के बाद 3-4 साल पहले मैंने अपने आप को एक स्टार्टअप कोचिंग के लिए अपना टाइम जो है वो डेडिकेट करना शुरू किया। So अब 3-4 साल हो गए हैं मुझे। मैं जो छोटी कंपनीज़ हैं, जैसे स्मॉल कंपनीज़ हैं या स्टार्टअप्स हैं, इनके साथ काम करता हूँ। कुछ डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उनके साथ काम करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका ये स्टार्टअप का जो शुरू हो रहा है, जो भी हेल्प गाइडेंस मैं दे सकता हूँ यहाँ से वहाँ से, इट विल बी माय ऑनर। सो ये अब मैंने क्यों किया स्टार्टअप, बिकॉज आई वाज इन अ वेरी गुड जॉब, सब ठीक है, यू ऑब्वियसली इन जॉब यू गेट गुड मनी एज वेल, बट एक होता है ना, पैशन होता है कि आप क्या कर सकते हैं। और मेरे को जो था वो बिजनेस कोचिंग के साथ साथ लाइफ कोचिंग का भी एक एक पैशन है मेरे को, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब लोग मोटिवेट होते हैं, जो कुछ अंदर से, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर से ड्राइव होती है। सो इन दोनों को कंबाइन करके जो है वो मैं अपना 3-4 कंपनीज, कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ ऐसे काम करता हूँ वहाँ पे भी। सो अभी जैसे मैंने कहा डॉक्टर शर्मा से बात हुई तो मुझे लगा कि ये मेरा अपना सिटी है, राइट? अगर इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ वहाँ से तो व्हाई नॉट। और जो इनिशिएटिव इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगा। मुझे काफ़ी सुन के खुशी हुई कि इस जगह पे भी, जहाँ पे आप लोग को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, और इवन सिटीज़ लाइक वेयर आई लिव, टोरंटो एंड वैंकूवर, वहाँ पे इतना कल्चर है स्टार्टअप का। तो ये सुन के एक बड़ा आई वाज ओवरवेल्म्ड एंड एक्साइटेड कि एक छोटी सी सिटी में भी, अपनी छोटी इसलिए कह रहा हूँ कंपेयर टू द बिग सिटीज़, ऑल्दो लुधियाना इज़ नॉट छोटी सिटी, कि इस सिटी में भी आप योर कॉलेजेस एंड योर इंस्टीट्यूशन इज़ प्रोवाइडिंग यू विद दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो आई क्रेडिट टू द मैनेजमेंट ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट दिस अप। सो बाकी जैसा मैंने कहा कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आई एम एज्यूमिंग कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट होगा इस फील्ड में, इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं। सो ये एक बड़ा एक्साइटिंग वर्ल्ड है जो स्टार्टअप वर्ल्ड है। इसमें वो पहले वाला कल्चर नहीं है जो आज से 15-20 साल पहले होता था, जब हम पढ़ रहे थे, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे। एक अपना प्रेशर होता था, एक पेरेंट्स का प्रेशर होता था कि नहीं जॉब ले लो, बस आप जॉब में ही जॉब ही बढ़िया है, विच इज़ ट्रू। कुछ घरों की सिचुएशन, कुछ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको जॉब लेना पड़ता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ही करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको 20 साल वेट करने के बाद ही अपना बिजनेस करना है।
अगर आप में ड्राइव है, अगर आप में वो पैशन है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। आपके पास अगर एक आइडिया है, उसको आप 20 साल वेट तो नहीं करवा सकते ना उस आइडिया का, क्योंकि तब तक तो वो आइडिया ही खत्म हो जाएगा ना, तब तक तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब आप सब लोग को ऊबर लेते हैं, टैक्सी जानते हैं सब ऊबर? जोर से यस बोलना पड़ेगा जब मैं क्वेश्चन, अब आपकी बारी आएगी, अब मैं क्वेश्चंस पूछने शुरू करूंगा आपसे। सो ऊबर जानते हैं सब? एयरबीएनबी के बारे में सुना है आपने? कितनों ने सुना है? हाथ खड़े करें एयरबीएनबी के। 2 लोग। गूगल के बारे में सुना है? हाथ खड़े करें। ऐसे गूगल के बारे में तो सबने सुना होगा, फोन तो सबके पास है, गूगल सर्च तो बहुत सारे की होती है। सो ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये भी कभी स्टार्टअप थे, ये भी कभी किसी ने शुरू किए थे। अब मान लो ऊबर जब शुरू हुआ तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आप टैक्सी लेते हैं तो आप टैक्सी क्यों लेते हैं? जब आपकी कार घर पे खड़ी है तो आप इसको यूज क्यों नहीं कर सकते? वो कार तो बेकार खड़ी है ना 8 घंटे। अब आपके पास मान लो या आपके पेरेंट्स के पास गाड़ी है, वो ऑफिस चले गए, गाड़ी तो वहीं खड़ी है, तो किसी को ये लगा कि इसको यूज क्यों नहीं किया जाए इस चीज को। कुछ लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है और कुछ लोग हैं जिनके पास गाड़ी पर खड़ी है, तो इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो कुछ बात बन सकती है, इसमें लोगों का बेनिफिट हो सकता है। सो एक ये बड़ी चीज़ आप याद रखिएगा कि लाइफ में अगर आपने कुछ भी करना है, चाहे वो जॉब करना है, चाहे आप स्टार्टअप करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने हमेशा आएगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ आपके इवन टुडे अभी भी आपके लिए रेलेवेंट होगी। आप जब भी किसी सिचुएशन में हो, आप 1 मिनट के लिए ये ज़रूर सोचें कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इस सिचुएशन में, चाहे वो लाइफ प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस प्रॉब्लम है। तो जब ऊबर ने वो शुरू किया तो उनको लगा कि एक प्रॉब्लम है, लोगों को टैक्सी का इतना फेयर देना पड़ता है, इतनी एक्सपेंसिव है, फिर मिलती नहीं है टाइम पे, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, राइट। सो वो किसी को कॉन्सेप्ट लगा, टाइमिंग अच्छी थी, उन्होंने इस पे थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया, जो आज का हमारा टॉपिक है। और जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है तो फिर फंडिंग भी ज़रूरी होती है, बिकॉज पैसे तो चाहिए ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए भी। सो अब मान लीजिए अगर आज ऊबर नहीं होता तो जो लोग ऊबर यूज़ करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि कितना वो बड़ा गैप होता। अब हम इस चीज़ को वो ले लेते हैं फॉर ग्रांटेड कि है, ऊबर है, बट कभी थोड़े साल पहले किसी ने सोचा, किसी ने शुरू किया, किसी ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया, अब आज वो एक इतनी बड़ी कंपनी है जो हज़ारों नहीं लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती है। गूगल ले लीजिए, जिसके बारे में आप सबको पता है। आज मान लो गूगल नहीं है तो आप अपनी लाइफ ज़रा सोच के देखिए कि क्या होगी। आप मानते हैं इस बात को या नहीं मानते? मैं नहीं हूं, डॉक्टर शर्मा थोड़े दिन की छुट्टी ले ले, काम चलेगा। अगर गूगल नहीं है ना तो आपके 5 मिनट निकालने मुश्किल हो जाते हैं। चाहे आप क्लास में हैं, चाहे आप फ्री बैठे हैं, चाहे आप वेट कर रहे हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं। सो अब गूगल अगर नहीं होता तो देखिए क्या होता, राइट, हमारा लाइफ क्या हो जाती। बट अगेन गूगल के बारे में किसी ने सोचा कुछ साल पहले, किसी ने उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया, किसी ने उसके लिए फंडिंग करी। आज गूगल जो है लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉय करता है। इवन इंडिया में आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी आप कंपनीज ले लीजिए, TCS है या इन्फोसिस है, ये सब एक स्टार्टअप थे कभी। तो इसलिए ये सोचना कि जो स्टार्टअप है वो हम 20 साल बाद ही कर सकते हैं, 25 साल बाद ही कर सकते हैं, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। ये सोचना कि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है जो लोग फेस कर रहे हैं, अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हमें एक आइडिया, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लॉन्च करना चाहिए। सो आपने ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होएगा, आपने ये सोचना है कि ये क्यों करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, आप ये ज़रूर सोचिए, चाहे ग्रुप में सोचिए, चाहे अपने आप सोचिए कि ये क्यों करनी है मुझे, इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होएगी। अब आप कहते हो जी मुझे ये शर्ट बनानी है, कोई स्टार्टअप आपके दिमाग में आया, बट ये शर्ट क्यों बनानी है? मेरे पास तो ऑलरेडी शर्ट है। क्या डिफरेंट है आपकी शर्ट में कि आपको ये करना चाहिए? आप समझ रहे हैं? सो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आपने
हमेशा याद रखना है। अगर मैं आज बोलूँ कि मेरे जाने के बाद आप एक चीज़ याद रखिएगा तो वो यही है, चाहे वो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम है, चाहे वो आप स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ प्रॉब्लम है, एक बात हमेशा हमने याद रखनी है कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। जब प्रॉब्लम पता लग जाती है ना तो सोल्यूशन ठीक हो जाता है। जब प्रॉब्लम पता नहीं लगती फिर आप कुछ भी सोल्यूशन ढूंढते रहिए, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। सो एक अच्छे स्टार्टअप के लिए आपके पास अब एक फोरम है, इसको यूज़ कीजिए। एक इंक्यूबेटर जो ये सेट कर रहे हैं उसको यूज़ कीजिए। आपके पास अगर वो पैशन है कि नहीं मुझे कुछ अपना करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आप इस फोरम को, इनके साथ जो भी एक्सपर्ट जुड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर शर्मा अकेले कर लेंगे इस काम को। इंस्टीट्यूशन तो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है आपको, करना तो आपको है, यूज़ आपको करना है। ये फोरम मैं बता सकता हूँ जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे पास नहीं था। मुझे आज भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर शर्मा यू कैन करेक्ट मी, कि मैनी इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के पास शायद ये नहीं है। तो आप लोग फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास ये फोरम आ रहा है, आप लोग फॉर्चुनेट हैं कि आपकी फैकल्टी इसमें इंटरेस्टेड है, आप लोग फॉर्चुनेट है कि आने वाले टाइम में आपके साथ और मेंटर्स और एडवाइजर्स और कोच जुड़ेंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर 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 यूज़ करें। हो सकता है आज जो 100 लोग बैठे हैं इनमें से 2-3 बहुत आगे सक्सेसफुल हो जाएं किसी स्टार्टअप को लेके। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 हो जाएं, हो सकता है 100 के 100 हो जाएं। दूसरी बात, आप जब ये करेंगे तो खाली ये नहीं है कि आपका जो स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसको सोच के भी मत करिएगा। क्योंकि जो आप सीखेंगे वो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे आप जॉब के लिए चले जाएं कुछ साल, या आप कहीं पढ़ाने चले जाएं, वो तब भी रेलेवेंट है। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है ना, उसको तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब आपके साथ आपकी लाइफ में अभी तक जो जो हुआ है वो आपके साथ ही है ना, किसी ने लिया तो नहीं है वो आपसे। तो इसलिए इसको यूज़ करें। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपको फोरम है, ये हर फील्ड में, हर एरिया में आपको हेल्प करेगा। सो अब बारी आपकी है। कुछ भी क्वेश्चन है आपके, कोई फीडबैक है आपका, या आप उसको पूछना चाहते हैं। अब जैसे मैंने बताया, डॉक्टर शर्मा ने बताया कि एक आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए एक आइडिया ज़रूरी है ना आपके दिमाग में। सबसे पहली चीज़ क्या, कोई आइडिया आएगा आपको, या आपको आएगा या आपका कोई फ्रेंड आपको देगा वो आइडिया। उसके बाद आप एक या अकेले उस पर काम करेंगे या ग्रुप में काम करेंगे। सो अब जो इंक्यूबेटर है वो क्या करता है कि उस आइडिया को इवन प्रूव करने के लिए कि आइडिया ये वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है, या आपको एक लैब की ज़रूरत है। जैसे आप अपना वो फिज़िक्स केमिस्ट्री करते हैं तो उसके लिए लैब आती है, सही है। तो इसी तरह अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है, उस आइडिया को आपको टेस्ट करना है कि आइडिया, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ये कैसे वर्क होएगा, उसके लिए आपको एक लैब चाहिए। तो वो जो ये लैब है, वो ये लैब आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अब उस लैब में आप क्या करते हैं, उस लैब में आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस टाइम किसी के दिमाग में कोई आइडिया है, अगर वो दे तो मैं कुछ थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ कि वो कैसे वर्क होगा। समझ रहे हैं? मोहित से क्वेश्चन ये है कि वो आगे क्यों नहीं लेके जा सकते। क्या मोहित के पास पैशन की कमी थी, क्या मोहित के पास एनवायरनमेंट की कमी थी, या मोहित के पास गाइडेंस की कमी थी, या मोहित के पास कोच नहीं था। अब मोहित की एग्जांपल की मैं आपको रफ एग्जांपल देता हूँ जो आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। आप जिम जाते हैं कि मुझे बॉडी बनानी है या मुझे बॉडी कम करनी है, या वेट लॉस के लिए जाते हैं या आप मसल बिल्डिंग के लिए जाते हैं। अब जब जिम जाते हैं तो मुझे आपको एक विचार आता है कि मुझे जिम जाना चाहिए क्योंकि मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है। अब जिम, एक तो पहले जिम होना चाहिए, अगर जिम नहीं है तो आप जिम नहीं जा सकते। फिर आप जिम पहुंचने के लिए आपको पैसे भी चाहिए क्योंकि मेंबरशिप तो आपको देनी पड़ेगी। अब जिम में जाके आपको कोच भी चाहिए जो आपको बताए कि एक्सरसाइज करनी कैसे। 3 चीज़ें ज़रूरी हो गई। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या थी उसमें, आपकी सोच कि मुझे बॉडी बनानी है और मुझे जिम जाना है। अब मोहित के पास वो सोच है कि मुझे गूगल को गलत साबित करना है।
ये वर्क होएगा नहीं होएगा हमको इस स्टेज पे ये एनालाइज नहीं करना है। आपके दिमाग में जो आइडिया है, जो पैशन है, वो मोहित का आइडिया, वो मोहित का पैशन है। अब मोहित को इसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको अब जिम जाना पड़ेगा। वो जिम क्या है जो डॉक्टर शर्मा ने आपको भी बताया, वो एक जो लैब, वो एक जो इंक्यूबेटर है, वो एक जिम है। अब वहाँ आएंगे, आपको वहाँ पे जो सीड बनी, इन्होंने बोला कि जो आपके दिमाग में ये जो आइडिया आया है उसके लिए आपको एक बीज तो बोना पड़ेगा ना, तभी वो पेड़ बने। उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे कुछ। यही प्रॉब्लम, बिल्कुल यही प्रॉब्लम, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि यही प्रॉब्लम। तो वो अब जब आप जाएंगे वो आपको एक पैसे मिलेंगे, फिर आपको गाइडेंस भी चाहिए। अभी तो आइडिया है ना, आपको एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेना पड़ेगा कि ये एनालिसिस करने के बाद मुझे उसमें ये तो हो गया कंफर्म है, अगर इसको करते तो यहाँ अपनी भी कंट्री का बेनिफिट होगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल अब उसको कर सकते हैं। बिल्कुल, हॉस्टल में रहते हो? नहीं सर, हाँ। मैं पास। तो आज की टॉक के बाद ये बस पकड़ने से पहले मेरे ऑफिस में आ जाओ, 15 मिनट के अंदर फाइन ट्यून कर, ठीक है ना? तो ये चीज़ ज़रूरी है कि अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसे मिलेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट के लिए गाइडेंस मिलेगी। ये देखो जो आप टाइम दे रहे हैं आपको इस एक चीज़ अगेन मैं बोल के जा रहा हूँ, जिस डॉक्टर शर्मा ने भी आपको बोला, आपको टाइम की वैल्यू ज़रूर करनी है। चाहे वो आपका टाइम है, चाहे वो मेरा टाइम है, चाहे वो इनका टाइम है, और सबसे ज़्यादा आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दो चीज़ें, अगर आप टाइम की वैल्यू अब नहीं करेंगे तो बाद में टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप अब हार्ड वर्क कर लेंगे, अब टाइम लगा लेंगे, अब कुछ अच्छा कर लेंगे, तो लाइफ ज़रा आने वाले सालों में कुछ आसान हो जाएगी। और दूसरे के टाइम को आप कभी फ्री टाइम मत समझ के उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। अब मैं आपको बता दूं, मेरी मदर हॉस्पिटल में है, मैं उनका हालचाल पूछने के लिए आया था, मैं फिर भी यहाँ आया हूँ। अगर आप नहीं उस चीज़ को करेंगे रिस्पेक्ट, तो क्या होगा, मुझे मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मैंने तो चलो आपको टॉक दे दी है। लेकिन जब आप किसी दूसरे के टाइम को ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे तो गॉड विलिंगली आपके भी टाइम की ना लोग रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। कोई टॉक खराब टॉक नहीं होती, कोई आइडिया खराब आइडिया नहीं होता, आपको उसको बस रिस्पेक्ट देनी है, आप उसको लॉजिकली आगे लेके जाना है। उस सोच को रोकिए मत। जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे, जिस लैब में, जो ये लैब की बात है जहाँ से फंडिंग आपको मिलेगी, गाइडेंस आपको मिलेगी, और मोहित को लगता है कि ये आइडिया क्रैक कर देगा इसको और इस दुनिया को, लेकिन मोहित ने भी उस आइडिया को टेस्ट नहीं किया। आप कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट है मोहित के पास कि ये जो मेरा आइडिया है ये ब्रेक कर देगा, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ है। और अगर मोहित इसको पूरी कंपनी बनाने के बाद प्रूव करेगा तो हो सकता है इसको करोड़ों का लॉस हो जाए, अगर इसके पास करोड़ है कंपनी शुरू करने के लिए। और ये मोहित के लिए भी एक अच्छी लर्निंग है, चाहे आपके पास करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ हैं भी, अब तब भी किसी आइडिया को ऐसे मत लॉन्च कर दीजिए कि वो फेल हो जाए। आप उसको छोटा सा टेस्ट करिए पहले कि आइडिया काम कैसे करेगा। अब देखिए, जब आप टेस्ट करते हैं तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में 3-4 चीजें होती हैं। एक तो आप अपना आइडिया टेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। एक आपको प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि आइडिया में क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे। तीसरी चीज क्या है, लोग। आज मोहित है, कल 4 लोग और। जब ये 3 चीजें, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, इंटरेक्ट करती हैं तो बड़ा एक डिफरेंट डायनामिक होता है। आप घर पे अकेले रहते हैं, आप बड़े खुश हैं, सही है? नहीं खुश हैं तो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप अकेले भी खुश नहीं है तो फिर किसी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं, आप खुश हैं, आप कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको बड़ा आनंद आ रहा है, और कुछ नहीं हुआ, आपके फादर या मदर आ गए ऊपर, उन्होंने आपको आके इतना ही बोला कि ये जो आप कर रहे हो इसको छोड़ो, आपका मजा खराब हो गया। तो जब कोई दूसरा आता है ना, लोग चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आप जब काम शुरू करेंगे ऑफिस में कोई और लोग आपको मिलेंगे, तो जब वो इंटरेक्शन होता है ना, तो वो चीज़ें आपके जो दिमाग में और आपके जो बिहेवियर में जो चेंजेस लाती हैं वो आपको लर्न कर रही है। तो इसलिए जब मोहित ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करना शुरू करेगा तो ये टेक्नोलॉजी के साथ, प्रोसेस के साथ, लोगों के साथ डील करना शुरू करेगा।
तब इसको पता लगेगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको मैंने कैसे आगे लेके जाना है। आप लोगों ने बल्ब के बारे में सुना होगा, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का वो किया था, 1000 times he failed, but he did not say I failed. उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं फेल हुआ, उन्होंने बोला कि 9000 बार मैंने ये सीखा कि ये काम क्यों नहीं करें। लेकिन वो डेडिकेटेड थे, वो पैशनेट थे कि मुझे इसको आगे करना ही है, और वो सक्सेसफुल हैं। तो वो जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, आप उसको उस पर टाइम ज़रूर स्पेंड करिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए ये लैब है, उसी के लिए ये गाइडेंस है, उसी के लिए ये सीड मनी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है एक आइडिया। आपका सवाल आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग टू अस। पिछले 45 मिनट 50 मिनट से आप हमको सुन रहे हैं। बीच में पता चल जाता है कुछ लोग बड़े अधीर हो रहे हैं बाहर जाने के लिए, किसी को गर्मी भी लग रही होगी, बट दे वेरी आई एम थैंक टू वनीत खुराना जी दैट पिछले 6-7 दिन की एक इक्वेशन ने एक फ्रेंड के थ्रू हम लोग मिले। वो फ्रेंड भी जो हैं, जो इनके फ्रेंड हैं, जो मुझे पहले मिले, वो भी अचानक हम लोग, मैं लुधियाना एक मीटिंग में गया था, मिस्टर नवीन वहाँ हमको मिले, उन्होंने वनीत जी से मिलाया। सो इट इज़ ऑल प्री डिस्टाइंड, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। So after 7 days, 8 days of our meeting before Diwali we met, and now today he is delivering a lecture to my first year students, and that is on a very specific note and a very good concept topic, that is of proof of concept. So with these words, I am again thankful to Vineet ji for sparing your time, and we will be again bothering you, though we have already requested you to accept our request on our mentorship pool as well as on our advisory board, and you have accepted the same. So Vineet ji will be on our advisory board of the Technology Business Incubator, and he will be guiding our budding entrepreneurs in future also. So with these words, I am thankful to my students, for their student coordinators, CRs and class teachers, for sparing you to listen us and sparing your time for this wonderful session. Thank you.